Good morning, students. Today we are moving on our third chapter, that is Social Institutions, Continuity and Change. ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, किस तरह से हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारी कास्ट सिस्टम है, वो एंशियंट पीरियड से कैसे कंटिन्यूटी में है, किस तरह से चलती आ रही है एंड किस तरह से वो चेंज हो रही है. So we'll move here, caste and caste system. So, like any Indian, you already know that caste is the name of an ancient social institution that has been part of Indian history and culture for thousands of years. So, we all know about the caste. Caste क्या होता है? एक ancient social institution का नाम होता है, ठीक है? But like any Indian living in 21st century, you also know that something called caste is defined a part of Indian society today. To what extent are these two castes, the one that is supposed to be the part of India's past and the one that is the part of its present? So caste हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं, इंडिया का पास्ट और इंडिया के प्रेजेंट के बारे में. Now caste in past. So past में caste किस तरह की थी? Now we learn about the caste in the past. Past में caste system किस तरह का था? As is well known, English word caste is actually a borrowing from the which that means casta. So caste को Portuguese language में क्या बोलते हैं? Casta, and इसका meaning क्या है? Pure breed. ठीक है, the word refers to the broader institutional arrangement that in Indian languages is referred by two distinct terms. So caste के दो अलग distinct terms हैं, दो अलग अलग और terms हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ना and जाति. So वर्ना means color. ठीक है, वर्ना का मीनिंग क्या हो गया? कलर. तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन किस तरह का है? सो एक कास्ट सिस्टम डिसाइड किया जाता था आपके कॉम्प्लेक्शन को देखकर, कलर को देखकर. तो इसके भी 4 फोल्ड्स हैं, 4 डिविजन्स हैं, दैट इज इनटू ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. ठीक है, 4 डिविजन्स है. हमने ये हायरार्किकल सिस्टम में पढ़ा है दैट वी आर हैविंग 4 सब डिविजन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, दैट इज ब्राह्मणा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. सो वर्णा जो होता है कलर पे बेस्ड होता है. Though this excludes the significant section of the population composed of outcast, foreigners, slaves, conquered people, and others, sometimes refer as the Panchmas of the fifth category. But because of this complexion system, वरना बहुत सारे लोगों को exclude कर देता है. ठीक है, so Jati is a generic term referring to the species or kind of anything ranging from inanimate object to plants, animals or human beings. तो जाति क्या होती है कि हम पर्टिकुलरली किसी भी एक ग्रुप को, एक स्पीस को कोई नाम दे देते हैं. ठीक है, जाति is the word most commonly used to refer to the institution of caste in Indian languages. Though it is interesting to note that increasingly Indian language speakers are being to be used word caste. ठीक है, तो अभी बता रहे हैं कि जाति हम कॉमनली कहाँ यूज करते हैं? लैंग्वेज पे. रेंज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स बोथ. ठीक है, जाति हर जगह हम यूज करते हैं, चाहे हम उसके लिए स्पीस बोल दें, चाहे ब्रीड बोल दें, चाहे कास्ट और जाति बोल दें. सो वर्ना एंड जाति दोनों अलग अलग चीज है, बट दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. कैसे कि वर्ना तो हमारी 4 ही हिरार्की में जो कास्ट आती है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. बट जाति क्या हो गया? इनकी आगे सब डिविजन्स हो गए. जैसे ब्राह्मण के भी आगे बहुत सारे सरनेम्स होते हैं, इनकी कास्ट होते हैं, डिविजन्स होते हैं. जैसे ब्राह्मण में शर्मास होते हैं, शर्मास के आगे बहुत सारे कास्ट होते हैं. तो ये क्या बन जाएगी? जाति बन जाएगी. जाति are in thousands, but Varna we are having only in 4. While Jati is taken to be a regional or local sub-classification involving a much more complex system consisting of hundreds or even thousands castes or subcasts. So जाति में बहुत सारी कास्ट हो सकती है, hundreds भी हो सकती है, thousands में भी हो सकती हैं, क्योंकि आगे castes and उनकी subcaste भी होती हैं. So I hope you have understood Varna and जाति. जाति होती है thousands में, Varnas we are having only 4.
Opinions also differ on the exact age of the caste system. So we are not aware कि caste system कब start हुआ था, कितना ये पुराना है. It is generally based on four varnas that you know very well, and they are roughly 3000 years old. However, the caste system stood for different things in different time period, so that is it misleading to think of same system containing 3000 systems. In its early phase, in the Vedic period, roughly between 900 to 500 BC, the caste system was really a Varna system. So इस टाइम में 900 टू 500 बीसी में नॉर्मली जो कास्ट सिस्टम था वो क्या था, वर्ना सिस्टम था, मतलब कि कॉम्प्लेक्शन पे बेस्ड था. अगर तो आप फेयर हैं दैट मीन्स आप हायर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हायर कास्ट को बिलोंग करते हैं. अगर हायर होते हुए भी डार्क है तो आपको लोअर ही ट्रीट किया जाएगा. These divisions were not very elaborate or very rigid, and they are not determined by both. बट ये जो वर्ना सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये कभी भी बर्थ से नहीं बताया जाता. देखो, दे वर नॉट डिटर्मिन्ड बाय द बर्थ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लेक्शन पे. Movement across the category seems to have been not only possible but quite common. It is only the post-Vedic period that the caste system became the rigid institution that is familiar to us from well-known definition. So caste system कब ज़्यादा हमारे knowledge में आया, कब वर्ना सिस्टम कम हुआ? From the Vedic period. Vedic period से caste system थोड़ा rigid हो गया. अब caste system में आपने पहले भी पढ़ा है कि पहले बता दिया जाता है कि जो आपकी कास्ट को काम दिया गया है आगे भी आपने वही फॉलो करना है. अगर तो आप ब्राह्मण हैं तो आप प्रीस्ट बनेंगे, अगर आप वैश्या हैं तो आप लोअर ग्रेड काम करेंगे, अगर क्षत्रिय है तो आप वॉरियर बनेंगे. बट आजकल ऐसा नहीं है, ऐसा सब वैनिश हो गया. अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग, सभी कम्युनिटी के सोल्जर्स हैं. The most commonly cited defining features of caste system are, चलिए अब जानते हैं फीचर्स, जानते हैं कि क्या है कास्ट सिस्टम के. कास्ट इज डिटर्मिन्ड बाय बर्थ, ठीक है ना. तो कास्ट तो डिटर्मिन्ड नॉट बाय बर्थ, इट इज डिटर्मिन्ड बिफोर द बर्थ, ठीक है. तो हमें कास्ट कहाँ से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से. जो हमारे पेरेंट्स की कास्ट होगी, जो आपके फादर की कास्ट होगी, वही आपकी होने वाली है. गर्ल्स की नॉर्मली मैरिज के बाद चेंज हो जाती है, बट बॉयज की वही रहती है. कास्ट इज नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस. तो हम चूज नहीं कर सकते कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मेरी कास्ट पसंद नहीं है, मुझे चेंज करनी है, वो मैं नहीं कर सकती. बीइंग अ बॉय तो नहीं कर सकते हो. वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट, लीव इट और चूज इट नॉट टू ज्वाइन इट, ठीक है ना. तो आप चूज कर सकते हो, ना छोड़ सकते हो, ना ज्वाइन कर सकते हो. Membership in caste involves strict rules about the marriage. So पहले क्या होता था? एंडोगैमस होता था, दैट इज मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स. काफी कम्युनिटीज में ऐसा होता था कि आप अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं कर सकते हो. तो कई कम्युनिटीज हैं कि सेकंड थर्ड कजन्स में भी मैरिजेस करवा दी जाती है. तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे मैरिजेस को लेकर. कास्ट मेंबरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग. तो कास्ट मेंबर्स में फूड को लेकर भी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी. जैसे कि आजकल अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी की, अगर हिंदू कम्युनिटी बाहर भी चला जाते हैं, अब्रॉड भी चला जाते हैं, बट दे विल नॉट हैव दैट थॉट ऑफ हैविंग बीफ. हिंदू कम्युनिटी कभी भी बीफ खाने के टाइम पर मतलब इजीली नहीं लेगी. हम लोग बहुत बार सोचेंगे कि नहीं, गऊ नहीं, गऊ का मीट है, काऊ मीट है, नहीं हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दैट काउ इज इक्विवेलेंट टू अ मदर, ठीक है. सो फूड शेयरिंग को लेकर भी हमारे माइंडसेट बनाए गए हैं कास्ट सिस्टम में. Caste system involve a system consisting of many castes arranged in hierarchy or rank or status. तो caste system में भी जैसे कि आप आप अपनी कास्ट देखिए, जिस कास्ट को आप बिलोंग करते हो उसमें भी आगे बहुत सारी सब डिविजन होगी, उसमें भी अपर एंड लोअर कास्ट होगी ही होगी. So caste involves subdivision within themselves. Caste almost have subcaste and some types subcaste also have subcaste. तो कास्ट की तो आगे सबकास्ट होती ही है, बट कुछ सबकास्ट की भी आगे सबकास्ट होती हैं. कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब नहीं है, बट पहले क्या होता था? कास्ट हमें बताती थी कि हमने क्या काम करना है. अ पर्सन born into the caste could only practice the occupation associated to that caste. अब जो पर्सन जिस कास्ट में बॉर्न हुआ है उसे वही काम करना पड़ेगा. ये जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होता था. सो ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता था. ऑन द अदर हैंड, अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कुड ओनली बी परस्यूड बाय द कास्ट एसोसिएटेड विद इट,
members of other caste could not enter the occupation. तो उस टाइम पर उस ऑक्यूपेशन में कोई और कम्युनिटी का पर्सन एंटर नहीं कर सकता था. Students, on your previous page, there is a picture of a person. His name is Ayan Kali and he was born in 1863 and died in 1914. ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखनी है, ध्यान रखनी है, इनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर याद रखना है एंड जानना है कि इन्होंने क्या किया. अयन कली born in केरल, ये केरल से है एंड ही वाज द लीडर ऑफ लोअर कास्ट एंड दलित. तो अयन कली कहाँ से है? केरल से है एंड ये लोअर कास्ट एंड दलित के लीडर है. With his effort, Dalit got the freedom to walk on public road and Dalit children were allowed to join the schools. So Ayan Kali के एफर्ट की वजह से दलित्स को परमिशन मिली थी नॉर्मली रोड्स पे घूमने की एंड दलित बच्चों को स्कूल्स में जाने की परमिशन मिली थी. नेक्स्ट इज ज्योतिराव गोविंद राव फुले. ये हमने पहले भी पढ़ा है. गोविंद राव फुले, he was born in 1827 and died in 1890. Govind Phule denounced the injustice of the caste system and scorned its rules of purity and pollution. तो इन्होंने भी लोअर कास्ट के लिए ही अपनी वॉइस रेज की थी, कास्ट सिस्टम को डिनाई कर दिया था. इन 1873 he founded the, this is important student, he founded the सत्याशोधक समाज, और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी. इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस होल. ठीक है, इन 1873 he founded the सत्याशोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी which was devoted to securing human rights and social justice for lower caste. तो ये भी लोअर कास्ट के लिए ही इन्होंने फाइट की थी, उनको जस्टिस एंड उनके राइट्स दिलवाने के लिए. Theoretically, the caste system can be understood as the combination of two sets of principles, one based on difference and separation and other on wholesome and the hierarchy. So this means कि अगर हम किसी अकेली सब कास्ट को रखें तो उसे हम कास्ट सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे कि हम बात करते हैं, मेरी ही बात करते हैं, लाइक आई एम आफ्टर मैरिज आई एम अत्री. सो अगर मैं अपना मेन कास्ट नहीं बताऊंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ. जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं शर्मा हूँ तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि अत्री कौन होते हैं. ठीक है, सो मेन प्रिंसिपल साथ रखना जरूरी है और हम अपनी जो सब डिवाइडेड कास्ट होती है उसको अलग नहीं कर सकते हैं. These different and separate castes do not have individual existence. ठीक है, तो इन कास्ट की अपनी कोई अलग एग्जिस्टेंस है ही नहीं है. दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू द लार्जर होल. तो लार्जर होल क्या हो गया? जैसे कि जो मेन कास्ट हो गए, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रा. द टोटलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कास्ट. Historians believe that those who were defeated in wars were often assigned low caste status. तो historians ये भी बताते हैं कि कास्ट कुछ लोगों की चेंज भी हुई है. कुछ लोग जो वॉर में हार जाते थे तो उनको लो कास्ट का स्टेटस दे दिया जाता था एंड कुछ को ऐसा होता है कि कई ने कुछ गलत काम कर दिया, अंडर अनपेट्रियोटिक एक्ट कर दिया, तो उनको भी लो कास्ट सिस्टम मिल जाता है. स्टूडेंट्स, सावित्री बाई फुले 1831 to 1897. सो ज्योतिबा फुले के बारे में तो हमें पता ही है. इन्होंने फर्स्ट गर्ल बनाया था पुणे में, हेडमिस्ट्रेस थी उस स्कूल की एंड शी डिवोटेड हर लाइफ टू एडुकेटिंग शूद्रास एंड अतिशूद्रास. She started a night school for agriculturists and laborers. She died while serving plague patients. So again, she is a prominent personality in the chapter. Now we learn about the colonism and the caste. So colonism आप सबको पता ही है क्या होता है. That Britishers ने हम पे जो रूल किया एंड वो जो टाइम था रूलिंग पीरियड, हमने उसे कॉलोनिज्म कहा. So first began in 1860. The census became a regular 10-year exercise conducted by the British Indian government from 1881 onwards. So जब हम सेंसस पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं, कि हम जिसमें जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी, हमारा सेक्स रेशो कितना है, तो ये सब कैसे जानते हैं हम?
सेंसस से जानते हैं। तो सेंसस कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में हुई थी। किसने की थी? इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है। द 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हार्बर्ट रिस्ले was particularly important as it sought to collect the information on the social hierarchy of the caste. So this was the person who made the caste system rigid, Herbert Risley. ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? लिख दिया, मेंशन कर दिया, इन्होंने हायरार्की बना दी और उस हायरार्की के नीचे बाकी सभी कास्ट को डिवाइड कर दिया। सो विद हिम डिवाइड एंड रूल स्टार्टेड the social order to proceed in the particular regions as to the position of the each caste in the rank order. तो हर एक कास्ट को उन्होंने रैंक में लिख दिया। पहले क्या होता था? पहले लोग कास्ट ना चेंज कर लेते थे, अपनी रीजन टू रीजन कर लेते थे। लाइक अगर वो अपनी कास्ट से सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो कास्ट चेंज कर लेते थे। एक फैसिलिटी थी उस टाइम पे। कास्ट इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी, फॉर्मल नहीं थी उस टाइम पे। पहले कास्ट इनफॉर्मल ही थी। Overall, scholars feel that this kind of direct attempt to count caste and to officially record the caste status changed the institution itself. एक रिकॉर्ड बन गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई चीज लिख दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है, उसे चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह ही कास्ट सिस्टम भी लिख दी गई, एंड जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। बिफोर दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, कास्ट आइडेंटिटीज हैड बीन मच मोर फ्लूइड एंड लेस रिजिड। तो पहले बहुत ज्यादा इजी था कास्ट सिस्टम को लेकर, इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट रिकॉर्ड होने के बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। The land revenue settlement and related arrangements and law serves to give legal recognition to customary right of the upper caste. These castes now became landowners in the modern sense rather than feudal castes, which claim on the land or claims to revenue or tribute of various kinds. सो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किसके पास गई? जो अपर कास्ट थे उनके पास लैंड रेवेन्यू चला गया। इट वॉज as part of these efforts that the Government of India Act of 1935, students, this is very, very important. Government Act, Government of Indian Act 1935 was passed, which gave legal recognition to the list or schedules of caste and tribes marked out for special treatment by the state. This is how the term scheduled tribe and scheduled caste came into existence. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दैट कि शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट किस तरह से बने? किस तरह से बने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था 1935 में, एंड इन सब ट्राइब्स को रिकॉर्ड कर दिया गया था शेड्यूल के अंडर। ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट किस तरह से बने? अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1935 विच गेव द लीगल रिकॉग्नाइजेशन। तो शेड्यूल्स के नीचे इनको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी। Another prominent personality is Perrier, जिनको E.V. रामास्वामी नेकर के नाम से जाना जाता है, and he was born in 1879 and died in 1973. So let's see Perrier ने क्या किया. He is known as rationalist and the leader of the lower caste movement in South India. तो ये lower caste movement South India में हुआ था, इसके लीडर थे वो। He aroused people to realize that all men are equal and that is the birthright of every individual to enjoy. So इन्होंने all are equal and हमें बर्थ से राइट है कि हम फ्रीली लिबर्टी के साथ रहे एंड इक्वली रहे। नाउ वी आर मूविंग ऑन द कास्ट इन प्रेजेंट। आजकल कास्ट सिस्टम कैसा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947? So before that, let's learn about Sri Narayan Guru. So Sri Narayan Guru was born in Kerala. So ये केरल के हैं. He preached brotherhood for all the fought the ill effects of the caste system. So he is also against the caste system. He led a quite significant social revolution and gave the watchword one caste, one religion, one God for all. Students, this is important कि who gave this name? किसने ये स्लोगन दिया था? One caste, one religion, one God for all men. That is Sri Narayan Guru. Now we are again moving to कास्ट इन प्रेजेंट आफ्टर 1947। आजकल इंडिपेंडेंस के बाद में कास्ट सिस्टम कैसा है? गवर्नमेंट को पता है कि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज्यादा रिजिडनेस आ गई है, बायसनेस हो गया है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है।
आप सबको पता है कि क्या नुकसान है कास्ट सिस्टम के। तो कास्ट सिस्टम एबॉलिश करने की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, बट कुछ हद तक नहीं भी की है। क्यों नहीं की है? लेट्स रीड दिस थिंग। On the one hand, the state was committed to the abolition of the caste and explicitly wrote in this into the constitution. On the other hand, the state was both unable and unwilling to push through radical reforms which would have underdetermined the economic basis of caste inequality. ठीक है, कास्ट को उन्होंने निकालने की कोशिश की है, बट वो अनएबल रहे, उनसे निकल नहीं पाया। एंड कुछ वो अनविलिंग भी थे। अनविलिंग क्यों थे? क्योंकि कास्ट के नाम पर उनको मिलती थी वोट, और वोट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंडली, कास्ट की वजह से ही आगे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, जैसे कि दलित पैंथर्स इन महाराष्ट्र, बहुजना समाज पार्टी। सो ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है। सो ये भी एक कारण आ गया कि कास्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने अबॉलिश नहीं करवाया। For example, appointments of government jobs took no account of caste. So 1947 के बाद में जो भी jobs आई वो सब किसको मिल गई? Well educated upper caste को मिल गई, and ill educated or often illiterate lower caste unable to compete on equal terms. ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पर अपर कास्ट को ही ज्यादा माना जाता था। वेल एडुकेटेड भी अपर कास्ट थे, क्योंकि उन्हीं को स्कूल्स में जाने की परमिशन थी, लोअर कास्ट को नहीं थी। सो अपर कास्ट को ही सारी जॉब्स मिल गई, और जो लोअर कास्ट थे वो उनसे compete ही नहीं कर पाए, वो जॉब ले ही नहीं पाए। Only the expectation of this was in the form of reservation tribe. गवर्नमेंट ने लोअर कास्ट के लिए कर दी, वो है उनके लिए रिजर्वेशन बना दी, कोटा सिस्टम कर दिया। In the decades immediately after independence, the state did not make sufficient effort to deal with the fact that the upper caste and the lower caste were far from equal in economic and educational terms. ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को पता था कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसे ब्रिज करने की जरूरत है, बट दे वर नॉट डूइंग सो, क्योंकि उनका अपना ही नुकसान। अदर पेज, recruitment to industrial jobs, whether in the textile mills of Mumbai, the jute mills of Kolkata, or elsewhere, continues along caste and kinship-based lines. The middlemen who recruited labor for factories tend to recruit them for their own caste and region, so that particular departments or shop floors were often dominated by specific caste. Prejudice against the untouchables remained quite strong and was not absent from the city, though not as extreme as it could be in the village. सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जॉब्स भी कास्ट के हिसाब से दी जाती थी। जो मिडलमैन होते थे वो भी कास्ट देखकर ही जॉब देते थे, एंड बेसिकली वो जॉब देते थे अपने ही कास्ट के पर्सन को, अपने ही रीजन के पर्सन को। और अनटचेबल के लिए जो प्रेजुडाइज था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अनटचेबल्स को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और ये प्रेजुडाइज सिटीज में भी था। While some boundaries may have become more flexible or porous, the borders between groups of caste similar socio-economic ruled. For example, intercaste marriage within upper caste, that is Brahmin, Baniya, Rajput, may be more likely now therefore, but marriages between upper caste and backward or scheduled caste person remain rare even today. Something similar may have occurred with regard to rules of food sharing. तो दिस थिंग मीन्स कि इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग गई हैं, बट इंटरकास्ट मैरिजेस भी अपर कास्ट में ही होती हैं। कभी भी किसी भी अपर कास्ट की मैरिज लोअर कास्ट या बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं होती है, एंड इवन ये प्रॉब्लम फूड शेयरिंग के साथ भी है। Since the 1980s, we have also seen the emergence of explicitly caste-based political parties. Since the 1980s, we have also seen the emergence of explicitly caste-based political parties. तो स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ दैट पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी कास्ट बेसिस पे, जैसे कि दलित पैंथर्स इन महाराष्ट्र एंड उसके बाद में बहुजना समाज पार्टी। संस्कृताइजेशन भी आप सबको पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कर लिया है अपनी पार्ट 2 में। संस्कृताइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस whereby member of
caste attempt to raise their own social status by adopting the rituals, democratic and social patterns of the caste of the higher status. तो संस्कृताइजेशन क्या होता है कि लोअर कास्ट के मेंबर अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड इसमें क्या क्या वो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि वो वेजिटेरियन बन जाते हैं या सेक्रेड थ्रेड पहन लेते हैं जिसको हम जनेऊ कहते हैं, या कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज एंड सो ऑन. So Sanskritization was termed by M.S. Srinivasan, M.N. Srinivasan. M.N. Srinivasan ये है, and he was born in 1916 and died in 1999. So M.N. Srinivasan ने क्या किया? Was the one of the India's foremost sociologist and social anthropologist. He was known for his work on the caste and terms such as Sanskritization and dominant caste. तो इन्होंने दो terms दिए हमें, Sanskritization and dominant caste. His book The Remembered Village is the one of the best known village study in social anthropology. So again important name, that is The Remembrance of Village. किसने लिखी है ये? M.N. Srinivasan ने. Now let's learn about the dominant caste. So dominant के नाम से ही आपको पता चल रहा है, वैसे भी हमने किया हुआ है. Dominant caste मतलब जिसका ज्यादा influence हो. Dominant caste is the term refer to those castes which have a large population and were granted land rights by the partial land reforms effected after the independence. तो इंडिपेंडेंस के बाद में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी एंड लैंड रिफॉर्म्स बन गए थे, लैंड का एक राइट दे दिया गया था अपर कास्ट को. ठीक है, द लैंड रिफॉर्म टुक अवे राइट ऑफ द claimants and upper caste who were absentee landlords. In this sense, they played no part in agriculture and economy other than claiming their rent. तो ये जो dominant caste के landlords थे, ये एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करते थे, इनको क्या बोला गया है? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा गया है. ये सिर्फ एक चीज करते थे, वो है रेंट को कलेक्ट करना. These land rights now came to be vested in next layer of the claimants, those who were involved in the management of agriculture but were not themselves the cultivators. These intermediate caste in turn depend on the labor of the lower caste, including specially the untouchable caste, and tilling and tending the land. This means कि लैंड राइट्स उन्हीं के पास गए जिनके पास कल्टिवेटर्स थे, जिनके पास काम करने के लिए लोग थे. दीज इंटरमीडिएट कास्ट इन टर्न डिपेंड ऑन द लेबर. और एक इंटरमीडिएट कास्ट जो थी वो लेबर पे डिपेंड थी, और ये लेबर कौन थे? अनटचेबल कास्ट, जो कि टिलिंग एंड टेंडिंग ऑफ द लैंड करते थे. नाउ वी लर्न अबाउट द डोमिनेंट कास्ट. कौन कौन से होती है? वैसे हमने किया हुआ है ये चीज. यादव्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, and Voklings of Karnataka, Reddis and Khammas of Andhra Pradesh, Marathas of Maharashtra, Jats of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and पाटीदार्स ऑफ गुजरात. सो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें लर्न रखना है, ये आप सबको लर्न करना है दैट कि कौन कौन सी डोमिनेंट कास्ट है इंडिया में. The upper caste elite were able to benefit from subsidized public education, especially professional education in science, technology, medicine and management. So जो upper caste लोग थे इंडिपेंडेंस के बाद में वही एजुकेशन गेन कर पाए. एंड उन्होंने एजुकेशन किस चीज में गेन करी? कौन से फील्ड्स में? साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड मैनेजमेंट. जो लोअर कास्ट थे एंड जो शेड्यूल कास्ट थे उनको तो एजुकेशन का बेनिफिट मिल ही नहीं पाया, क्योंकि जो अपर कास्ट थे इनके पास जो इलीट अपर कास्ट थे, इलीट मींस जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे वही पढ़ पाए, इन्हीं के पास अथॉरिटी थी स्कूल्स में जाने की. बाकी लोअर कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस को परमिशन ही नहीं थी स्कूल्स में जाने की. In this initial period, they led over the rest of society, ensured that they did not face any serious competition. Certainly, for the third generation from these groups, their economic and educational capital alone is quite sufficient to ensure that they will continue to get the best in terms of life chances. So क्या हुआ कि क्योंकि इनकी मेन जनरेशन पढ़ चुकी थी, तो उसके बाद
जैसे फादर अपर क्लास फादर है, उन्होंने पढ़ लिया तो आगे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, आगे उसने अपने बेटे को पढ़ाया, तो इस तरह क्या हो रहा था कि जनरेशन टू जनरेशन अपर कास्ट आगे ग्रो कर रही थी। पर ये बेनिफिट लोअर कास्ट को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनकी जो मेन कास्ट थी, मेन जनरेशन थी, उन्होंने ही नहीं पढ़ाई की। अगर हम अब बैकवर्ड क्लासेस की अब बात करें, अब कहीं जाके वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगे, उनको अब थोड़ा सा राइट मिला है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाने का। बट क्योंकि हमारी थिंकिंग ऐसी है, हम प्रेजुडाइज बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। अभी भी अगर हमें पता चल जाए कि कोई लोअर कम्युनिटी का स्टूडेंट है, या कोई भी आप लोगों में नहीं होता, बट हाँ ये आगे जाके कॉलेजेस में, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन में होता है कि कोई लोअर कम्युनिटी का है, तो उसके साथ थोड़ी बहुत वो डिस्क्रिमिनेट करते ही करते हैं। Although the privileged as a group of overwhelming upper caste, not all upper caste are privileged, some being poor. क्योंकि सभी अपर कास्ट अमीर नहीं थे, सभी अपर कास्ट रिच नहीं थे, तो उनको भी एजुकेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, सिर्फ एलीट लोगों ने ही पढ़ाई अच्छे से की है, एलीट अपर कास्ट लोगों ने। अभी एक नया रूल भी आया है दैट गवर्नमेंट हैज गिवन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। सो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दी है। सो ये क्यों दी है? ताकि जो लोअर लेवल के लोग हैं वो भी अपने आप को डेवलप कर सके। The juxtaposition of these two groups are seemingly caste-less upper caste group and apparently caste-defined lower caste groups in some of the central aspects of the institution of caste in the present. So आजकल present में हम caste को दो तरह से देखते हैं, एक caste-less upper caste and दूसरा that is कास्ट डिफाइंड लोअर कास्ट ग्रुप्स। तो दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक कास्टलेस अपर कास्ट, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी कास्ट क्या है, वो कितने अपो है, या उनके पास क्या क्या बेनिफिट है। एंड सेकंड, दूसरा है कास्ट डिफाइंड लोअर कास्ट ग्रुप। कास्ट डिफाइंड क्यों बोला गया है? क्योंकि उनकी कास्ट से ही उन्हें जाना जाता है, आगे जितने भी अपॉर्चुनिटी है उनकी कास्ट देखकर ही उन्हें मिलती है। नॉर्मली तो मिलती नहीं है, बट आजकल मिलने लग गई है। So students, that's all for today. I hope you have understood your new chapter. If you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.